Good afternoon, all of you. I am Himanshu, your economics faculty at Mud IAS Academy. We will start economics today with its introduction and trend analysis and few topics. Introduction basically. Let's start with the name of subject economics. Economics. दो टर्म होते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. What is the basic difference between them and what we actually have to study economy or economics. हमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस पता होना चाहिए पहले. इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है. चलिए शुरू करते हैं. इकोनॉमिक्स. What is economics and economy? Economics is a theoretical subject, a social science that study production, distribution and consumption of the goods and the services, while economy is the real life implementation of the economics. Means इकोनॉमी के अंदर हम इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं, थ्योरीज को पढ़ते हैं और इकोनॉमी में हम इम्प्लीमेंट होते हुए उन्हें देखते हैं रियल लाइफ में. इकोनॉमी तो इसलिए हम कह सकते हैं इकोनॉमी इज द रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स. द प्रोडक्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की चलो लिख देते हैं दोनों की. social science that study the production, distribution and consumption of the goods and goods and services, while economy is the real life implementation of the economic theories means it is a practical concept. While economics is a theoretical concept. ओके हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. क्लियर. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी, फर्दर डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स. Economics is divided into further two branches. First is microeconomics and second is macroeconomics. Second is macroeconomics. इन microeconomics बेस पहले हम जानते हैं कि microeconomics इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, macroeconomics is a broader concept.
पहले हम ये जानते हैं कि नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है. नैरो कॉन्सेप्ट मीन्स इट डील विद a less area. It deals with the less area, while the broader concept means it includes a broader perspective of the life. Microeconomics deals with the individuals, households, basically where a small level, while the macroeconomics deal with the larger, narrower perspective of the life. For example, in macroeconomics, we deal with per capita income. We deal with welfareism, welfare. While in economics, microeconomics, in INDIV, individual problems, households, market analysis, small level. Done. Basically हमने क्या पढ़ा? Economics is further divided into two branches, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics डील करता है छोटी लेवल पे. छोटी लेवल पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब that includes less number of pupils, that affect less number of people, while macroeconomics has a broader concept deal with a large section of the society, large section or the whole section of the society. Policies made under microeconomics affect on individuals, households, a small market, while policies made under macroeconomics deal with whole, maybe whole country, maybe uh, maybe whole country, maybe international, global. Welfare can be of a whole community, a whole country, a whole world. While we will see in microeconomics, for example, if we talk about macroeconomics, per capita income. Per capita income is dealt with the person, not only a single person. It tell about one person that how much a person earn annually, but it is calculated keeping in mind whole income of the country or any other place. इकोनॉमिक्स डिफरेंस जानने के बाद हम इकोनॉमिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे. It has some central problems. Economy has some central problems. Economy has some central problems. लिख लेते हैं. Central problems. कोई भी प्रोड्यूसर होता है. इकोनॉमिक्स बेसिकली डेफिनेशन आई हैज टोल्ड यू द डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, जैसे कि उसमें हम पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट डील विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन. फर्स्ट द वर्ड प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स इंक्लूड प्रोडक्शन. इसी प्रोडक्शन के ही अंडर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं. हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. लिख देता हूँ मैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस.
second, how to produce, and third last is for whom to produce. These are the three central problems that a producer face in an economy. What to produce? When a producer has to produce something, first of all he has to make sure the section of society for whom he is to producing is need that thing or not. मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो प्रोड्यूसर है उसे कुछ बनाना है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट उसे पहले जानना चाहिए कि सोसाइटी में उसकी नीड क्या है, वरना उसकी डिमांड होगी नहीं। इकोनॉमिक्स इज द पूरा इकोनॉमिक्स खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। मान लीजिए प्रोड्यूसर कुछ ऐसा बना देता है जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो कोई फायदा नहीं उसे बनाने का, डिमांड है नहीं तो सप्लाई बढ़ा के क्या करेंगे। इसीलिए पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर मेक श्योर, मतलब उसे पहले इंश्योर करना चाहिए हमें बनाना क्या है, जिसकी सोसाइटी में नीड है, डिमांड है, तो बनाया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्लियर, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर लिया कि हाँ हमें प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट ए बनाना है, प्रोडक्ट ए इसे बनाना है, डिसाइड हो गया प्रोडक्ट ए की नीड भी है सोसाइटी में, नीड और डिमांड। उसके बाद आते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस। उसे टेक्निक कौन सी यूज करनी चाहिए। टू टेक्निक मेंशन करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज मशीन ना कहते हुए कहिए आप कैपिटल इंटेंसिव, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। कुछ नहीं, मतलब इसमें ये है प्रोडक्ट ए हमें अगर बनाना है तो हमें उसमें लेबर इंटेंसिव मतलब कि हमें लेबर ज़्यादा रखनी है, मतलब मैन फोर्स को ज़्यादा बढ़ा के देना है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव हमें मशीनों की तरफ जाके जाना है, मतलब मैनुअल मैनुअल वर्कर्स, workforce, while in capital intensive we work with machines, mechanical, okay, labor intensive और capital intensive. What to produce, done, demand, producer has to choose the product which has demand. Second, how to producer has to choose the technique that should be used to produce that product. Technique are labor intensive, capital intensive. Third, for whom to produce. What to produce, done, for whom, how to produce and for whom to produce. What to produce में हमने जाना कि प्रोड्यूसर को डिमांड पता लग चुकी है कि हाँ इस प्रोडक्ट की सोसाइटी में डिमांड है, मार्केट में डिमांड है। सेम क्वेश्चन लग तो रहा है कि हम इसमें भी प्रोडक्ट जान रहे हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन थर्ड में हमें सेम लग रहा है, लेकिन इसमें हमें प्रोडक्ट पहचानना होता है कि हमें बनाना क्या है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमें पता करना होता है किसके लिए बनाना है, द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वी हैव टू चूज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द प्रोडक्ट वी आर मेकिंग। Complete? Understood? Next, these are the central problems. Then एक बार मैं फिर बता देता हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स।
तीन होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट चूज करना होता है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, चूज ऑफ द टेक्निक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, चूज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर whom वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड। थर्ड थर्ड हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम कई बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ओपननेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, और यही हम तीन देखेंगे। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने बता दिया, हम कई बेसिस पे इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवीजन लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे हम तीन तरह से होती है। फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। डन। सेकंड, on the basis of interrelation. Only two types. इंटररिलेशन के बेसिस पे बस दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, ओपन इकोनॉमी एंड सेकंड इज क्लोज्ड इकोनॉमी। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा, प्रोडक्शन हमने कर लिया, इंटररिलेशन कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। These are basically on the basis of economics. First, developed countries. Developed. Second is developing economy. ये 1, 2 and 3. Third is underdeveloped. Okay. अभी हमने क्या देखा? Types of economy can be divided on several routes. हम एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को कई बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। हमने तीन बेसिस पे किया है। प्रोडक्शन के बेसिस पर,
इंटर रिलेशन पे एंड स्टेटस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बेसिस पे कैसे, प्रोडक्शन को ओन कौन कर रहा है, इस जो प्रोडक्शन पर्टिकुलर प्लेस पे कंट्री में हो रहा है उस प्रोडक्शन को ओन कौन करता है, मतलब उसे ओन जो करता है कैपिटलिस्ट, प्राइवेट, सोशलिस्ट, गवर्नमेंट, मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स वहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल्स मिलके प्रोडक्शन को हैंडल करते हैं। ओके। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन। इकोनॉमी, ये तो है नहीं कि एक ही इकोनॉमी है वर्ल्ड में, बहुत सारी इकोनॉमीज होती हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी अपनी अलग अलग इकोनॉमीज होती हैं, तो उनमें जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे हम डिवाइड किया है। ओपन इकोनॉमी है कोई, जैसे अपना कोई कंट्री, ओपन जब हम कहते हैं जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके। ओपन मीन्स ओपन टू ग्लोबल। क्लोज्ड इकोनॉमी। इसी तरह हम और स्टेटस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। स्टेटस मतलब कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, वो डेवलप्ड है, बढ़ चुकी है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहीं पे हम लेक्चर को एंड करते हैं।